चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस मीटिंग में मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा के पार्षद भिड़ गए। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस पार्षदों ने नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह को वोट चोर कहना शुरू कर दिया। इसके विरोध में मसीह वेल में आए और कहा कि राहुल गांधी भी जमानत पर है। इसे कांग्रेसी पार्षद भड़क उठे। उन्होंने अनिल मसीह के लिए वोट चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेस के पार्षदों के हाथ से अनिल मसीह को वोट चोर कहने वाले पोस्टर छीन लिए। हंगामा बढ़ते देखकर हाउस की मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेसी पार्षद गुरप्रीत सिंह गप्पी ने कहा कि उनके हाथ से पोस्टर छीने गए हैं। इससे विवाद बढ़ गया। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास है। देश ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੈਲ ਚਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਛੁਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ इथों सस्पेंड करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे दिया। नगर निगम में इस तरह की घटनाएं शर्मनाक बताई गई। यह जनता की आवाज को दबाने का प्रयास भी इसको उन्होंने कहा है। देखिए, आज जो हुआ नगर निगम में सदन के अंदर वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले मेयर का चुनाव हार गई थी, आज तक उस हार को हजम नहीं कर पाई। इसलिए हर सदन की मीटिंग के अंदर वो हंगामा करने की कोशिश करती है, बेकार से बेकार मुद्दे उठाकर, और जो लोक हित के मुद्दे हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। आज भी हमारा ये प्लान था कि सारे जो एजेंडाज हैं उसको पहले किया जाएगा, उसके बाद जीरो आवर की डिस्कशन की जाएगी। पर आज हुआ क्या कि जैसे ही हाउस की मीटिंग स्टार्ट होती है, उन्होंने अजूल जलूल आरोप मेयर पे लगाने शुरू कर दिए। और जबकि जो असली मसला चंडीगढ़ के अंदर चल रहा है, जिसे लेकर आज सभी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपनी आवाज उठाई, वो है बिजली विभाग के निजीकरण का, जिसके अंदर एक दूसरा अडानी चंडीगढ़ के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। जब उस मुद्दे को हमारे साथियों ने उठाया तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, और खास तौर पर जो इनके नॉमिनेटेड काउंसलर हैं अनिल मसीह, जिन्होंने पूरे न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी जो चंडीगढ़ का नाम बदनाम किया था अपनी एक कृत्य के द्वारा, जब उन्होंने वोटों की हेराफेरी की थी पिछले नगर निगम के चुनाव, मेयर के चुनाव के अंदर, जब वो पीठासीन अधिकारी थे। और आज वो उलझुल बोलने लग पड़े और लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे और बहुत गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्होंने सारा माहौल खराब किया। मुझे तो हैरानी इस बात की हुई जब भाजपा के पार्षद उनको बचाने के लिए और उनके समर्थन में उठ खड़े हुए, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबको पता है कि उन्होंने कैसा काम किया, कैसा कृत्य किया। उस समय लोगों ने हमें ये कहकर कहा था कि यार इनके खिलाफ कोई बात नहीं उठानी, क्योंकि शायद ये अपने मानसिक उसमें स्थिति में ठीक नहीं थे या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। पर आज और पिछली मीटिंग में हमने खास तौर पर देखा, जब वो मेयर के दफ्तर के बाहर बैठे थे, उनको शायद अपने किए हुए की कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, कोई भी एहसास नहीं है। इसलिए जिस तरह की बातें आज वो उठा रहे थे, उससे पता चलता है कि वो उनकी सोच कैसी है। इसलिए मैं इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, उनको भी ये एक ताकीद करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी के साथ खड़े हुए ना दिखाई दें। इसने लोकतंत्र की हत्या की थी, और जिस
जिसने लोकतंत्र को शर्मसार किया। मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा पर हमला बोलते हुए कि भाजपा अब हाथापाई पर उतर आई है, यह लोकतंत्र का अपमान है। बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी को शायद सच सुनने की आदत ही नहीं है। आज वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है राहुल गांधी जी पे, जिसने खुद यहाँ पर इस हाउस के अंदर लोकतंत्र की हत्या की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और वो आज हाउस में चिल्ला चिल्ला के राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहा है, बाबा साहब के बारे में। तो क्या समझ सकता हूँ उससे कि मैं वो बेसिकली हाउस का माहौल ख़राब कर रहे थे, और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने एक हमारे साथी पार्षद के ऊपर हाथ तक भी मतलब मारने की कोशिश की। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि 30 मार्च को उन्होंने एक लोकतंत्र की हत्या की थी, आज भी उसी तरह का कुछ घटना की गई कि ये संविधान जो हमारा हाउस है, एक संविधान का मंदिर लगा लीजिए या हमारा पूजनीय स्थान लगा लीजिए, जहां हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और वहां पर इस तरह के कार्य करना जो आज हुआ वो बहुत गलत हुआ। भाजपा के वरिष्ठ उप मेयर कुलजीत संधू ने मेयर कुलदीप कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि मेयर खुद कोई काम नहीं करना चाहते। जब उनकी नाकामियां सामने आती हैं तो वे दूसरों पर आरोप लगाना आरंभ कर देते हैं। देखो ऐसा है, मेरे साथ तो किसी की हाथापाई नहीं हुई है, लेकिन हाँ अब ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा पार्षद थे, तो भीड़ भाड़ में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है ना जी। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो अभी जो इस टाइम मेयर बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं मेयर साहब, वो हमेशा आप पुराना रिकॉर्ड करा के देख लेना, जितने भी होश आए हैं उससे पहले वो पार्षद थे, तो हमेशा बोलते थे कि मेरी वार्ड में डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है, स्मेल आ रही है जी, मेरे वहाँ बच्चे खेल नहीं पा रहे, उनको स्किन की प्रॉब्लम है जी, बच्चों की शादी नहीं हो रही। लेकिन जब से वो मेयर बने हैं, एक बारी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा डंपिंग ग्राउंड अब बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है या स्मेल आ रही। कभी बोला आपने? कभी नहीं बोला। आप जब आप चेक कर लीजिए। और दूसरा, वो अपनी वार्ड में भी नहीं रहते, मेरे हाउस में रह रहे हैं। भाई के लिए आपको रिस्पांसिबल ठहरा रहे हैं, भाजपा पार्षदों को रिस्पांसिबल ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं पोस्टर खींचे कि हमारे साथ मारपीट की। ऐसा है कि मैंने तो कोई पोस्टर खींचा नहीं, ठीक है। अगर बीच में हाथापाई किसी ने खींचा हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर वो इतनी जानबूझ के गाली गलौज करेंगे तो मजबूरन है, उनको फिर करना पड़ता है सबको, ठीक है जी। मैं सिर्फ आपसे यही आपको बोलना चाहता हूँ कि मेयर साहब को ये पूछिए कि अभी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ वो जाके वहाँ डड्डू माजरे में रहेंगे, फिर उसको स्मेल नहीं आएगी? फिर आएगी जब हमारे बीजेपी के मेयर बैठ जाएंगे ऊपर, फिर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अभी वो 1 साल से मेयर है, उनको कोई स्मेल नहीं आ रही, सब बच्चों की शादी भी हो रही है, अब डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल साफ हो गया, उल्टा मैनिंग करवा रहे हैं वो। आपको पीछे आपने देखा भी होगा, अपना प्रेस अपना दैनिक भास्कर में भी खबर छपी है, अमर उजाला में, सभी में छपी है। उन्होंने वहाँ मैनिंग करवाई है और बोला कि जो मैनिंग करवाई है वो बच्चों के उसमें ग्राउंड में करवाया। बीजेपी ने खाली कर दिया, बिल्कुल फंड नहीं है हमारे पास विकास के एजेंडे। बिल्कुल नहीं, बीजेपी रिस्पांसिबल ये नाकाम हुए हैं फंड लेके आने में। ये मेयर हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, एमपी इनका है। अगर फंड लाने में नाकाम हुए तो खुद हुए हैं। हमारे जब मेयर थे, आप पिछले मेयर उठा के देख लो, जो अनूप जी थे या हमारे सरबजीत कौर जी थे, कभी कोई कमी नहीं आई। अब तो भाई साहब ऐसा बुरा हाल है कि आपकी वार्ड में अगर 5 से 2 लाख का काम है, वो भी नहीं हो पा रहा कि फंड ही नहीं है। हमारी बारी में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो ये टोटली फेलियर मेयर है। जो कांग्रेस के पार्षद हैं, गुरप्रीत गापी जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनको भी नहीं पता। वो पता नहीं, वो गांव की बात करते हैं, लेकिन गांव में तो रहते नहीं। वो 45 में रहते हैं सेक्टर में, उनको क्या पता है गांव की क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। कभी एजेंडा लेके आ जाते हैं कि मने माजरे बड़ी जमीन बेच दो, फलाना बेच दो। अगर हमने बेच के गुजारा करना है भाई साहब, आज आप मने माजरे की जमीन बेचोगे, उसके बाद कहीं और की बेचोगे। जमीन बेचने से थोड़ी ना मुद्दे हल होंगे। आप बल्कि आप ये करो कि यहाँ से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है, यहाँ से जो इनकम बढ़ाने के, रेवेन्यू सोर्स करने की चीजें हैं, उसमें आप ध्यान दीजिए। वहीं भाजपा के पार्षद कंवर राणा ने आरोप लगाया कि सदन में हाथापाई भाजपा पार्षदों ने नहीं बल्कि उनके अपने पार्षदों ने की। मेयर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। हंगामे के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। इस घटना की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। देखिए, आपने हाउस के अंदर देखा कि बार बार अनिल मसीह को टारगेट किया जा रहा है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। उसके बावजूद आप किसी बंदे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कोई आरोप प्रूफ नहीं हुआ है। आरोप लगा है, जिस दिन साबित होगा उस दिन आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला है तो हमें पार्षदों को किसी भी पार्टी का हो, हमें इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने बोला कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत में है, तो कांग्रेस वाले लोगों को तकलीफ हो गई। देखिए, अगर आप किसी को बार बार छेड़ेंगे तो कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन जो है वो जरूर आएगा। और आप देखिए, इनका तो सेट प्रोटोकॉल है कांग्रेस का। वहां पे राहुल गांधी लोकसभा के सांसदों को मारते हैं, और यहाँ पर इनके जो गापी जी हैं
वो जो है कुलजीत संधू को मारने के लिए उतारू हो गए थे, उनको कई तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और रही बात, अब जब मेयर फेल हो गया इस पूरे साल में, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं रहा, खुद कह रहा है कि मैंने रेता चोरी की। बताओ, जब किसी मेयर ने यही बोल दिया कि मैंने रेता चोरी किया है, उसके बाद कमिश्नर साहब किस बात की इंक्वायरी करा रहे हैं? मुझे तो अफसरों का जो रवैया है बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जब एक बंदे ने एडमिट ही कर लिया कि मैंने रेता चोरी किया है, तो उसके बाद फिर इंक्वायरी किस बात की करनी है आपको? आज ये पूरे शहर में फेल हो गए हैं, इनके पास कोई भी डेवलपमेंट, जो इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए थे, लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और आने वाले कारपोरेशन चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा हमारा मानना है। इन्होंने कोई भी चंडीगढ़ की जनता के लिए काम नहीं किया और अब बहाने बना के हाउस को डाइवर्ट करना चाहते हैं असली मुद्दों से।